Okay, classes started now. Fine. So, hi people, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सब? Are you all healthy and fine? Healthy, wealthy, fit and fine? सब बढ़िया है? Okay, now what we are going to start today? We are going to start with a beautiful poem and that is No Mena Foreign by James Kierkegaard. So, no men are foreign means कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी जो पर्सन है वो दूसरे देश का नहीं है, कोई भी पर्सन दूसरे कंट्री का नहीं है. दिस माइटी पावर द गॉड, इसने हमको एज अ ह्यूमन बीइंग बनाया था सो दैट वी कैन डेवलप द अर्थ, वी कैन गिव समथिंग गुड टू द अर्थ. बट something adverse happened, and that was the thing we created the borders, we created different continents, we created different countries, and we partitioned the countries and the continents. Why? We also don't know. Whose benefit it is for, we don't know. We have Bharat, China, Pakistan, we have this country and that country. एंड हम क्या कहते हैं कि ये कंट्री वीक है, वो कंट्री स्ट्रांग है. सो जिसने ये डिविजन्स किए हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं, गॉड ने नहीं किए हैं. उन्होंने हम सबको एक कॉमन ह्यूमन बींग की तरह भेजा था. उन्होंने हमको एज अ ह्यूमन रेस क्रिएट किया था. व्हाट वी डिड, हमने अपने बेनिफिट के लिए, हमें नहीं पता कि इससे क्या बेनिफिट हुआ है, बट हम कहते हैं इसमें हमारा बेनिफिट था. हमने डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स, इनके बेसिस पर लोगों को डिवाइड करा है. Here in the image you can see कि some people are black, some are white, some looks like Indian, some looks like American, some look like European, some look like Africans. सब अलग अलग लग रही हैं. There is a lot of diversity. इस कंट्री में डाइवर्सिटी नहीं है, इंडिया में केवल डाइवर्सिटी नहीं है. छोड़ो इंडिया को, अब देखो वर्ल्ड को. वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. हर चीज़ के बेसिस पे डाइवर्सिटी है ना. एंड देर आर सेवरल रीजन्स जिसके बेसिस पर आज भी हम डाइवर्सिटी को और बना सकते हैं. आज भी हम कई बेसिस पर बांट सकते हैं इस ह्यूमन रेस को. लेकिन अगर हम एक कॉमन चीज़ देखें टू मेंटेन द पीस between each and every country is that we all belongs to the human race. There are thousands of reasons on the basis of which people can be divided for the wars. But one common reason, the one most strongest reason, most strong reason, most tough reason, most steady reason is that we all belongs to the human race. हम सब human race को belong करते हैं, है ना. वी ऑल बिलोंग टू द ह्यूमन रेस. डजेंट मैटर्स कि आप कौन सी कंट्री से हो या वो कौन सी कंट्री से है. द थिंग इज दैट हम सब ह्यूमन रेस है. गॉड ने हम सबको एक तरीके का बना के भेजा. देयर आर सेवरल सिमिलैरिटीज इफ यू लुक इन ईच एंड एवरी पर्सन. नेवर इट मैटर्स कि वो कौन सी कंट्री का पर्सन है, इट मैटर्स कि वो ह्यूमन बीइंग है. कोट बाय सॉक्रेट्स. सो जो सॉक्रेट्स का कोट है ये आपके बुक में भी है. आप जब पोम रीड करेंगे तो उसके एंड में आपको ये मिलेगा. आई एम अ सिटीजन नॉट ऑफ एथेन और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड. तो आई एम अ सिटीजन, मैं नागरिक हूँ, अथेन का नहीं, ग्रीस का नहीं, ऑफ द वर्ल्ड. दिस शोज अस द यूनाइटेडनेस, the brotherhoodness between each and every person. I am a citizen, that means I am living where? Not in Greece, not in Athens. I am living in this world. इस वर्ल्ड में मैं जीता हूँ. ये जो डिफरेंट बॉर्डर्स हमने बनाए हैं ये तो ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए हैं. गॉड ने तो केवल एक वर्ल्ड बना के देखा था, एक दुनिया बना के. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. स्टैंजा 1. Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? They too aware of sun, air, and water.
are fed by peaceful harvest. The war's starved winter, the war's long starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours, that to wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we all dispossess, betray, or condemn. Remember, we who take arms against each other. It is the human earth which we defy. Our hells of fires and dust outrage the innocence of the air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. बहुत बढ़िया, ये तो रीडिंग था. But what is the meaning of the poem stanza wise? Let's delve into this. Remember, no men are strange, no countries are foreign. See, ये जो पोम थी इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो जो पोएट थी उन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि लड़ाई झगड़ा जो किया जाता है ना, ये गलत है. वो कहते हैं कि कोई भी अजनबी नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है. अगर आज हम एक कॉमन यूनिफॉर्म, आज हम एक यूनिफॉर्म की बात करते हैं. यूनिफॉर्म हियर रिफर्स टू द ड्रेसेस वॉर्न बाय द सोल्जर्स. तो जो सोल्जर्स ड्रेस पहनते हैं उसकी बात हो रही है. सो जो सोल्जर्स है वो जो ड्रेस पहनते हैं उसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी है जो ब्रीथ करती है, जो जीती है. आप खुद देखो, इंडियंस की अलग यूनिफॉर्म है और पाकिस्तान में अलग है, चाइना में अलग है, अमेरिका की अलग होगी, सबकी अलग अलग है. लेकिन कॉमन चीज़ ये है कि हम सब एक ही शरीर के हैं और हम ब्रीथ करते हैं. लाइक आज द लैंड ऑफ ब्रदर्स वॉक अपॉन. तो जैसे हम अपने लैंड पे घूमते हैं ना, तो वो भी अपने लैंड पे घूमते हैं. एंड द नेक्स्ट लाइन, द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज सेइंग दैट यही वो ज़मीन है, यही वो लैंड है जिस पे हम सब मर जाते हैं, हम सब अपने प्राण त्याग देते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द लैंड वेयर वी ऑल लाइव. हम सब सन, एयर, वाटर को यूज करते हैं. दीज आर द बाउंटीज ऑफ द नेचर, दीज आर द रिसोर्सेज दैट द नेचर गिव्स टू अस. सी, इफ नेचर इज नॉट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन you, me and any other person in this world, then why we are doing these discriminations? A poet is trying to emerge this feeling in yourself. So the poet is trying to emerge this feeling that sun, air, water, these are the natural sources the nature is providing to us. They are not discriminating between the people कि ये है, ये है, ये है, वो है. हम सब कॉमन हैं, हम सब कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं. अपना पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें कहाँ से मिलता है? आफ्टर द हार्वेस्ट. और यही जो अच्छा पीसफुल हार्वेस्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स, ड्यूरिंग द वॉर्स के समय पे जो लोग हैं वो भूख से मरते हैं. स्टार्व मीन्स भूखमरी होती है, लोग भूख से मरते हैं. Their hands are ours and in their lines we read. जैसे हम अपने हाथों की लक लाइंस को रीड करते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपनी हाथों की लक लाइंस को रीड करते हैं. A labor not different from our own. So जैसे हम काम करते हैं अपनी ज़मीनों पर, जैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए कुछ अर्न करते हैं मंथली या पर डे, जो भी हम अर्न करते हैं अपने लिए, तो वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी करते हैं. सो कहाँ है डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है. हम सन, एयर, वाटर सब यूज़ कर रहे हैं. पीसफुल हार्वेस्ट यानी जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद खाना खाते हैं. वॉर में हम सबकी वैसी ही हालत होती है, मरने वाली है ना. एंड हमारे हाथों की लक लाइन्स है जो बहुत कुछ कहती हैं और हम सब एक लेबर की तरह वर्क करते हैं जस्ट टू अर्न. ओके, स्टैंजा 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by. तो हमारी आँखें हैं, उनकी भी आँखें हैं और आँखें दिन में उठती हैं, जागती हैं. दे वेक अप एंड ड्यूरिंग नाइट वो बंद हो जाती हैं, दे शट डाउन. जब वो रात को बंद हो जाती हैं तो देयर आर स्वीट ड्रीम्स दैट वी सी
एंड जब वो सुबह उठती हैं देयर आर न्यूमरस प्लान्स फॉर द डे दैट वी डिसाइड, एंड देर इज अ स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। दैट मीन्स लड़ झगड़ के कभी किसी को नहीं जीता जा सकता। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉन, अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप वो चाहते हो कि वो स्ट्रेंथ आपको मिले, तो आपको कैसे वो स्ट्रेंथ मिलेगी? बाय लव। गिव लव एंड अटेन द स्ट्रेंथ। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जगह कॉमन लाइफ है जो हम रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत से डिफरेंसेस हैं हाँ, कि लोगों का एक्सेंट बोलने का अलग हो सकता है, बट वो सब लोग अपने फीलिंग्स को वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसे हम, वो सब लोग वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मेजरली जो हम कर रहे हैं। Stanza 4. Before starting with the stanza number 4, let me take a sip of my tea. Okay. Stanza 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we all dispossess, betray, and condemn. Remember, we who takes arms against each other. So जब भी हमें ये बोलते हैं कि लड़ो जाओ लड़ो, who says these words to us? The leaders of the country. वो चाहते हैं कि हम लड़ें झगड़ें। सो ये जो लड़ने झगड़ने वाली बातें हैं ना, ये गलत है। वाई? बिकॉज इसमें हम हेट पैदा कर रहे हैं अपने ही ब्रदर्स के अगेंस्ट। ब्रदर हेयर रेफर्स टू द यूनिवर्सल ब्रदर्स। फाइन, तो जब भी हमें कहा जाता है कि हम लड़ें अपने ब्रदर्स के खिलाफ, तो हमारे ब्रदर्स हम ही हैं, हम खुद हैं जो अपने खिलाफ लड़ते हैं। दिस इज़ द मदर अर्थ जिसने हम सबको जीवन दिया है। हम अपने रियल ब्रदर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते, अपने रियल रिलेटिव्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस द पोएट वांट्स टू कन्वे। सो जब भी हमें कहा जाता है कि डिस्पोजेस करें, यानी दूसरों के लैंड को छीने, डिप्राइव करें, बीट्रे चीट करें, कॉन्डेम यानी बुराई करें एक दूसरे की, दैट इज़ द आर्सेल्स, जो हम अपने को ही दुख पहुँचा रहे हैं। Remember, we who takes arms against each other. Arms here, army takes arms against each other, है ना, between different people. So this is the wrong thing because we all belong to the human race and this is our duty, our responsibility to maintain the humanity for the peace. Okay. It is a human earth that we defile. तो ये हम सबकी अर्थ है जिसे हम डिफाइल करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। कैसे पॉल्यूट करते हैं? वॉर्स करवाते हैं। जब वॉर्स होता है, कितने जो लोग हैं जो अनजान हैं इस वॉर से, वो मारे जाते हैं। कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं, कितने लोग हैं जिनका फैमिलीज ख़त्म हो जाते हैं, कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां चली जाती है। तो क्या वॉर अच्छा कुछ करता है? केवल प्रेस्टीज एंड प्रोस्पेरिटी के लिए हम अपने देश के लोग एज वेल एज दूसरे देश के लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इज़ दिस द थिंग वी वॉन्ट? ये क्या चीज़ है जो हम विन करते हैं, जीतते हैं? जो असली चीज़ जीती जा सकती है वो बाय लव है। प्यार देकर हम जीत सकते हैं दुनिया को। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है, बट जैसे एक ब्रिक, पूरी एक ब्रिक मिलकर एक पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर देती है, वैसे अगर एक एक इंडिविजुअल हर कंट्री का मिलकर ये प्रण ले, ये ओथ ले कि आज से हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम सब एक हैं, इस फीलिंग को जगाए अपने अंदर, तो वॉर्स नहीं होंगे, लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे। So our hells of fires and dust outrage the innocence of air that is everywhere upon. ये हवा, ये एटमॉस्फेयर हमारा है जिसे हम पॉल्यूट करते हैं। कैसे पॉल्यूट करते हैं? बाय फायर्स एंड डस्ट। लड़ाई के समय ये होता है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। कोई भी अजनबी नहीं है, कोई देश विदेश नहीं। Concept of the poem, the whole concept of the poem is this poem was written during the end of the Second World War. Huge destruction was caused. The poet wants to convey the message of humanity, brotherhoodness, equality, and fraternity. Fraternity is same as brotherhoodness. Some words are there which you may find difficult for you, so there are no such kind of words to difficult to. There are some which I have noted. Poetic devices, there are 4 poetic devices here. I have mentioned 3. The 4th one we are going to discuss in the next class because it's something new for you, a strange for you. Alliteration, repetition of the same sound word, sound letter.
like B and W. So body breathes and wars winter. Metaphor, uniform refers to the military dress of the different countries, and you have stanza 2, wartime is compared with the winter season. Then you have repetition of the word remember 5 times in the poems. So thank you, bye bye. If you like the video, like करो, subscribe करो, channel को share करो. Thank you.